So today's topic is the quotient remainder theorem. You all have already seen this in school days, right? What do you know about quotient remainder theorem, students? What do you know about quotient remainder? Do you have any relation which includes quotient and remainder? I think you all can answer this question. Come on. What is quotient remainder? So in from the school days, we have seen, कि we are having, dividend. Dividend किधर होता है? इधर होता है, right? ये होता है dividend. इधर क्या होता है? Divisor होता है. Here we are having quotient. And remainder क्या होता है? इधर आता है, right? Okay, so this is what we have, dividend, divisor, quotient and remainder. Now ये चारों related कैसे होते हैं एक दूसरे से? They are related by this relation. So dividend is equals to quotient into divisor. Yes, divisor plus remainder. So this is how they are related to each other by this relation. All right. So हम क्या करेंगे? हम लोग mathematics में हम क्या करते हैं? Variable and symbol use करते हैं, right? So I'm going to denote my dividend by letter N. So this is how I'm going to denote my dividend. Quotient, for quotient I'm going to take variable Q. For divisor I'm going to take variable D. And for remainder I'm going to take variable R. So this is what you're going to get, relation N is equals to QD plus R. So this is your quotient remainder theorem, students. All right. This much you understood, everyone? Yes, ma'am. Okay. Now I'm asking you one question. You all tell me what is the answer for this. If you divide any number by 4, so any question complete नहीं हुआ है, इसमें बताओ कि dividend क्या है, divisor क्या है. If you divide any number by 4. Divisor 4 है मैम. Correct. और any number क्या हो जाएगा मेरा n हो जाएगा, right? Dividend मेरा क्या हो जाएगा any number. So if you divide any number by 4, what are the possible remainders, students? What are the possible remainders? Remainders की possibility क्या क्या हो सकती है? Can it be 0? Can it be 0? क्या remainder 0 हो सकता है if you divide any number by 4? Yes, ma'am. Yes, remainder 0 हो सकता है, मतलब वो number पूरा का पूरा क्या होगा? 4 से divisible होगा. Okay, all right. If you divide, can remainder 1 हो सकता है क्या? Yeah, ma'am. Yes. Okay, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, Of course. हो सकता 3 है. हो सकता है, 4 हो सकता है क्या Yes, remainder? ma'am. Can you divide Yes, any number by 4 and remainder can it be 4? No, ma'am. नहीं, remainder क्या होगा? If you divide any number by 4, the possible remainders are 0, 1, 2 and 3, right? So इधर मेरा divisor क्या है बच्चों? D है. तो अब बताओ कि remainder क्या क्या हो सकता है? So remainder कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा बच्चों, बताओ? 0 to 3. 0 से 3. 0 इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ? Include. करोगे मैम. Yes, 0 remainder हो सकता है. Okay, but remainder is always going to be greater than 0. Am I right, students? Remainder is always going to be greater than 0, yeah, or 0 or greater than 0. All right. Okay. Yes, ma'am. Maximum remainder कितना हो सकता है? Equals to D or less than D? क्या लगता है? Equals to 3. Equals to? Less than equals to 3. No, इधर ma'am. divisor D में बोल D रहे है. हैं, D. D. Ma'am, less Divisor than is D. D. Less than D. Very good. So remainder is going to be less than D. All right. So less than D मतलब क्या? D से एक नंबर छोटा कौन सा होता है बच्चों? D से एक नंबर छोटा क्या होगा? D minus 1 होगा. So remainder क्या होगा? 0, 1, 2 and so on. Last remainder क्या हो सकता है? It is going to be D minus 1. 1. So this is your quotient remainder theorem, student. What is your quotient remainder theorem? For dividend equals to quotient into divisor plus remainder. Now dividend के लिए I have used a variable n. For quotient I have used variable q. For divisor d. For remainder r. कोई भी नंबर को अगर आप d से डिवाइड करोगे, the possible remainders are 0, 1, 2 up to d minus 1. D can never be the remainder if you divide any number by d. Understood? Yes or no?
Yes, ma'am. All right. Yes. Let us do some problems on this. Quotient remainder theorem, I don't think so कितना कुछ difficult है इसमें understand करने के लिए. And directly we'll start with the problem. Okay, so इसका quotient remainder theorem का यही याद रखना है कि n equals to dq plus r, where d is the divisor, q is the quotient, r is the remainder, n is the dividend. And remainder की possibility क्या होगी? It will be from 0 to d minus 1. Okay, so I'm giving you question उसका quotient and remainder बताना है. Okay, quotient and remainder बताना है. So let n is equals to 54 and d is equals to 4. इसका quotient और इसका remainder क्या होगा? So 54 को आप पहले 4 से divide करोगे, right? Well, I question. 4 ones are 4. 4 to the 4 3 the 12. So फिर 4 3s are 12 होता है ना? So this is how we perform the division, no? Yes. Okay, so 54 को कैसे लिखेंगे हम? 4 into 13 plus 2. So ये हो गया मेरा n, 4 हो गया मेरा d, 13 हो गया मेरा q, 2 हो गया मेरा रिमाइंडर. क्या 2 रिमाइंडर हो सकता है क्या? हाँ मैम. क्यों हो सकता है? Ma'am, it's less than 54. It's less than divisor. ना डिविडेंड से लेस नहीं होना चाहिए, डिवाइजर से लेस होना चाहिए. Yeah, sorry. Okay, My so bad, my r is bad. equals to 2, 2 is less than d, d is 4. So therefore yes, 2 can be the remainder. All right, ठीक है. चलो इसके जब हम ये सेम चीज ना हम क्या करने वाले, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने वाला चीज ना हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे ना, सो हम डायरेक्टली ना ये कमांड देके हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे एंड रिमाइंडर निकालेंगे. तो वो कमांड क्या है जो हमें नो कोड ऐसे साइलैब में टाइप करने के बाद हमें आंसर दे देगा कि भाई ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है. सो दैट कमांड इज स्टूडेंट्स, दैट कमांड इज दिस. सो एंड div. Okay, so this is for the quotient students. The integer quotient obtained by obtained when n is divided by d. Obtained when n is divided by d. So ये कमांड दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, divided by d. So ये कमांड आप साइलैब में टाइप करोगे एंड देन यू विल गेट n डिफाइन करने का, d डिफाइन करने का, उसमें वैल्यूज पुट करने का, एंड देन यू विल गेट कि भाई n को अगर मैं d से डिवाइड करता तो क्वोशिएंट क्या होगा, तो वो आपको क्वोशिएंट देगा और कोई वैल्यू नहीं देगा. व्हेन यू गिविंग कमांड n डिवीजन d, सो इट विल गिव यू द क्वोशिएंट. ओके, नेक्स्ट होता है रिमाइंडर. रिमाइंडर के लिए कमांड क्या देने का, n mod d. क्या कमांड देने का स्टूडेंट्स, mod. सो ये क्या करेगी, इसका उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस. ठीक है, सो व्हेन यू डिवाइड n बाय d बिकॉज ऑफ दिस कमांड मॉड्यूलस, तो वो समझेगा मशीन की इसको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जा रहा है. सो इट विल डिवाइड n बाय d एंड इट विल गिव यू द रिमाइंडर. द non-negative integer remainder obtained when n is divided by d. I hope everyone has understood कि ये div क्या काम करेगा और mod क्या काम करेगा. Anyone having any doubt in this? चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप मुझे उसका आंसर बताओ. मैम कमांड क्या बोल रहे हैं, मतलब कमांड. ओके, वेरी गुड. आप लोगों का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट नहीं हुआ है क्या अभी तक? सी प्लस हिमानी मैम तो आई थिंक कौन ले रहे थे, बी डिवीजन है ना? नहीं, ए डिवीजन. तो ए डिवीजन में हाँ, तो सी हो रहा होगा ना, तो उसमें तो ये सब वर्ड यूज होते होंगे. मशीन को कमांड देने का, कमांड एज इन के लिए आपने ये सिंटेक्स टाइप किया आपके जो भी सॉफ्टवेयर पे आप परफॉर्म कर रहे हो. सो ये कमांड देने से मशीन को समझता है कि लाइक इसको क्या बोला जा रहा है, मॉडल n mod d, मतलब n कोई नंबर रहेगा, d इज अ डिवाइजर, तो उसको डिवाइड करके बिकॉज ऑफ दिस कमांड mod, सो मशीन विल अंडरस्टैंड कि उसे रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो वो क्या करेगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा एंड आपको शो करेगा आउटपुट. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि mod लिखा मतलब हमें रिमाइंडर मिलेगा, div लिखा तो मतलब हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा. ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे दैट टाइम विल अंडरस्टैंड. ऑलराइट, so you are having n is equals to suppose 16 and d is equals to 4. So tell me n div
डी क्या आएगा एंड एन मॉड डी क्या आएगा? ये क्या देगा आपको? फर्स्ट वन क्या देगा आपको? व्हेन यू आर राइटिंग एन डी आई वी डी क्या होगा? क्वेश्चन देगा। एन को 2 से डिवाइड करो, 16 को 4 से डिवाइड किया, क्वोशंट कितना आता है? 4. हाँ, क्वोशंट 4 आता है। ओके, सो ये हो गया आपका एन डिव डी। व्हाट अबाउट एन मॉड डी? एन मॉड डी क्या 0. देगा आपको? रिमाइंडर। 0. सो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि ये दो कमांड क्या करने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, ले ma'am. लेते हैं। सपोज अब प्रीवियस वन ही ले लेते हैं। सो 54 है एंड डी 13 है, ठीक है? डी, हाँ ठीक है। सो व्हाट इज योर एन डिव डी एंड एन मॉड डी? NDUD 4 आएगा मैम. ये 4 आएगा, यू श्योर? Yes. और ये कितना आएगा? वो कितना बचता है रे? 2 आएगा. 2 आएगा। ओके, यस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि div कमांड क्या कर रहा है एंड mod कमांड क्या कर रहा है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is very interesting. Let's see how many of you can answer this question. Okay, let me write down the question. First question. Suppose, okay, ये आपका ना जो अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं उधर। तो सपोज टुडे इज ट्यूसडे, suppose today is Tuesday and neither this year nor next year, मतलब करंट ईयर भी क्या है, लीप ईयर नहीं है ना कि नेक्स्ट ईयर भी लीप ईयर होगा। लीप ईयर समझता है ना क्या होता है? Yeah, ma'am. Yes. क्या होता है? एक दिन ज्यादा होता है. हाँ, करेक्ट। सो 1 ईयर में क्या रहेंगे? 366 डेज रहते हैं, सो उसे लीप ईयर कहते हैं। सो नेक्स्ट ईयर इज लीप ईयर ना। तो क्या बोल रहा है ये कि ना तो ये साल है ना तो नेक्स्ट साल क्या है, लीप ईयर है, ठीक है? So what day of the week will it be 1 year from today? 1 year from today. So I will get the question first of all. Tell me, did you all get the question first of all? Suppose today is Tuesday, मतलब assume कर लो क्या, हाँ वैसे भी for a coincidence, you know, आज का दिन भी Tuesday है। Okay, suppose today is Tuesday and neither this year nor next year is a leap year, ठीक है ना? ये ना तो ये साल में 366 days है ना तो next year 366 days है। So what day of the week will it be 1 year from today? तो एक साल के बाद आज ही के तारीख में कौन सा डे होगा? क्या लगता है एक साल के बाद क्या होगा? बुधवार होगा। Wednesday. हाँ, सॉरी, Wednesday. वेडनेसडे। लाइक कैलकुलेशन बताओगे? टेल मी द कैलकुलेशन, हाउ डिड यू ऑल डू इट? अरे वेडनेसडे फटाक से बोल दिया, बट कैसे कैलकुलेशन किया आप लोगों ने? 365 को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 व्हाई डिड यू आया डिवाइड तो उसमें व्हाई डिड यू डिवाइड बाय 7? व्हाई डिड यू डिवाइड बाय 7? डेज इन अ वीक। Yeah, ma'am. ओके, वीक में 7 दिन होते हैं मैम. हाँ वीक में 7 डेज होते हैं, दैट इज अंडरस्टूड, बट व्हाई आर यू डिवाइडिंग इट बाय 7? 365 को 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हो तुम लोग? वीक में 7 डेज होते Now, हैं, 365 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं. अगर आज ट्यूसडे, लिसन, हमें बोल रहा है कि Yes. अगर आज ट्यूसडे तो एक साल के बाद क्या होगा, राइट? मतलब एक साल के बाद मतलब 365 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, ये पूछ रहे क्वेश्चन में, राइट? सो अगर आज ट्यूसडे, ठीक है, तो एक हफ्ते के बाद भी क्या आने वाला है? ट्यूसडे। हेलो, ट्यूसडे आएगा, राइट? 1 वीक के बाद फिर से ट्यूसडे आएगा, 2 वीक के बाद भी ट्यूसडे आएगा, 3 वीक्स के बाद भी ट्यूसडे आएगा। बट कितने वीक होते हैं 365 में? कितने वीक्स होते हैं? 52। हाँ, 52 वीक्स होते हैं। तो मतलब 52 वीक्स
ओके सो 52 वीक्स होते हैं, बचा कितना? 52 वीक्स में कितने हो गए? 52 into 7 है 364 होता है, बट 365 होता है, एक दिन और बच रहा है ना, तो एक दिन आप क्या Remainder करोगे? one ऐड है, कर दोगे। हाँ, तो एक दिन और ऐड करना, बिकॉज आपको एक साल के बाद का दिन बताना है। तो 52 वीक्स होते हैं, हमको पता है 364 डेज के बाद इट इज गोइंग टू बी ट्यूसडे। रिमाइंडर 1 है तो उसमें 1 ऐड करो, तो 1 ऐड किया तो मतलब नेक्स्ट डे क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी वेडनेसडे आफ्टर 1 ईयर। अंडरस्टूड एवरीवन कि कैसे वेडनेसडे ma'am. आया एक साल के बाद? आज की तारीख पे क्या होगा? वेडनेसडे इज गोइंग टू कम। ऑलराइट, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन कैसे लिखने का? सो देयर आर हाउ मेनी डेज? देयर आर 365 डेज। days. मैम प्रेजेंट डे को काउंट करके 364 रहेगा कि छोड़ के? तुम बताओ। काउंट करके छोड़ के आएगा ना 364। छोड़ के आएगा। अगर आज ट्यूसडे, आज का दिन थोड़ी खत्म हुआ है। अरे चुप रहो तुम लोग, तो अपना ही शुरू हो जाता है। आज का दिन नहीं खत्म हुआ, आज का दिन स्टार्ट हुआ है। व्हाट इफ आई आस्क यू Calendar क्वेश्चन classes में मिडनाइट पे, तो मतलब 10 बजे क्वेश्चन करो तो मतलब दिन खत्म हो गया ना, मतलब आज का डे काउंट नहीं करना, ऐसा होता है क्या? सो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड देन ट्यूसडे, मतलब 7 दिन के बाद इट इज गोइंग टू कम ट्यूसडे। So there are 365 days in a year. In a year, that is not a leap year, okay? Okay, and each week has 7 days. Each week has 7 days. Okay, so हमें पता है कि 365 days होते हैं एक ईयर में, which is not a leap year, and हर एक वीक में 7 days होते हैं, ठीक है? So we'll calculate this 365 कितना आएगा स्टूडेंट्स? डिव लिखा है, मतलब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना होगा फिर? 365 डिव 7 कितना हो जाएगा? 52, 54 52 आएगा आई गेस। और रिमाइंडर कितना 52, आएगा? 52. रिमाइंडर कितना आएगा? 1 हो जाएगा, राइट? तो one सो आएगा। यस, और ये ऐसा क्यों आया? बिकॉज 365 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 into 52 प्लस 1। तो ये जो 52 है हमारा क्वोशंट हो गया, 1 के हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। ओके, सो thus आफ्टर 52 वीक्स, 52 वीक्स मतलब कितने डेज हो गए? 364 डेज हुए ना? yes बस आफ्टर 52 Yeah, वीक्स ma'am. और 364 डेज फ्रॉम टुडे, क्या होने वाला है? Tuesday Will be a Tuesday, right? Will be a Tuesday. And after 365 days क्या हो जाएगा? Wednesday So ये 364 डेज की बात का बोला है कि आफ्टर 364 डेज क्या होने वाला है? ट्यूसडे होने वाला है। बट हमें तो आफ्टर 1 ईयर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? सो देयरफॉर आफ्टर 365 डेज फ्रॉम टुडे इट इज गोइंग टू बी, सो फ्रॉम टुडे बोला है, फ्रॉम टुडे मतलब इसने आज का दिन भी इंक्लूड किया है। सो फ्रॉम टुडे क्या हो जाएगा? फ्रॉम टुडे विल बी, yes, from today will be Wednesday. So I hope everyone has understood this explanation. But अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, तो ये कैलकुलेशन पूरा ये सॉल्व करके जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड दैट कि 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स के बाद ट्यूसडे आएगा एंड एक रिमाइंडर बचा, मतलब हमें वो डे ऐड करना है, तो वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट? ये नहीं कि बस एक लाइन में आंसर लिख के खत्म करोगे, ठीक है? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Yes, ma'am. Okay, now I'm going towards next question. Yes, Nilesh, you want to ask anything? मैम जैसा अगर 52 वीक्स है तो 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब रहेंगे? Yes, obviously week में 7 days होते हैं। यस मैम।
वीक में 7 डेज होते हैं ना बेटा, तो सारे डेज को आपको काउंट करना है। जो फिर एक डे एक्स्ट्रा बचेगा उसमें कौन सा मतलब डे पीरियड होएगा ऐसा? कौन सा डे इंक्लूड होगा? अरे बेटा देखो कितना क्लियरली बोला था कि अगर आज ट्यूसडे है तो 1 साल के बाद आज का दिन कौन सा रहेगा, ठीक है। तो 1 साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। 365 डेज में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, राइट। तो अगर आज ट्यूसडे, तो 1 हफ्ते के बाद भी क्या होने वाला है? ट्यूसडे आने वाला है। 2 हफ्ते के बाद भी क्या होगा? ट्यूसडे आएगा। 3 हफ्ते के बाद भी क्या होगा? ट्यूसडे आएगा। सिमिलरली 52 वीक्स के बाद भी क्या होने वाला है नीलेश? ट्यूसडे होने वाला है, राइट। अब बच्चा बट 52 वीक्स मतलब कितने डेज हो गए? 364। बट हमें तो 1 साल के बाद पूछा ना कि 1 साल के बाद कौन सा दिन होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, तो तुम मंडे बोलोगे? मंडे बोलोगे आंसर? 364 डेज के बाद ट्यूसडे। हेलो हेलो Yeah, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. यस। सो आफ्टर 52 वीक्स वी आर गोइंग टू हैव ट्यूसडे, बट हमें तो 365 डेज के बाद वाला दिन जानना है, राइट। तो 364 डेज के बाद ट्यूसडे है, तो 365 डेज के बाद क्या होने वाला है? एक दिन ऐड करो आप, दैट इज गोइंग टू बी वेडनेसडे, बिकॉज ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, फ्राइडे या थर्सडे नहीं लिखोगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now I'm giving you all next question. So that question I'll be explaining you all, okay? And the similar questions I'll give you all to do it. Okay. So ये question exam से हर साल पूछते ही है. Question number 2. Suppose m is an integer. Suppose m is an integer. If m mod 11 is equals to 6. If m mod 11 is equals to 6, then what is 4m mod 11? Okay, so कौन बता सकता है कि what is given to us in this question before I start with the solution? What is given to us? Remainder and integer. Remainder दिया, very good. क्या remainder दिया हुआ है हमें? 6. So if mod yes, if m mod 11 equals to 6, mod लिखा है मतलब हमें क्या दिया हुआ है? रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक है। सो बोलता है कि अगर m को 11 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 6 आता है तो 4m को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? दैट इज माय क्वेश्चन. आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू अस, ठीक है। ओके, सो वी आर गिवन m mod 11 इक्वल्स टू 6. तो आप लोगों ने फटाक से बोला कि रिमाइंडर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज वेरी राइट. रिमाइंडर भी डिनोटेड बाय लेटर r. सो ये हमें दिया हुआ है 6. व्हाट इज डिवाइजर? आर वी गिवन डिवाइजर आल्सो? 11. Yes, divisor is 11. Divisor, how do we denote? We denote it by letter D. D. और क्या दिया हुआ है हमें? We are given dividend also, right? Dividend क्या दिया हुआ है हमें? m दिया हुआ है, ठीक है। So m को 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 मिला। क्वोशंट हमें नहीं मिला तो हम क्वोशंट क्यों ले लेंगे, ठीक है। So by quotient remainder theorem, ये चारों को मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ बाय क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम? टेल मी क्विकली. सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. सो डिविडेंड क्या है हमारा? इधर m है, डिवाइजर क्या है हमारा? 11 है, क्वोशंट हमें पता नहीं है तो क्वोशंट में क्या ले लेती हूँ? q प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना है? 6 है. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? ये इक्वेशन कैसा आया? Anyone having doubt in this कि how did we get this equation? So ये कौन सा equation? कैसे मिला ये equation? How did I get this equation? Everyone? Remainder theorems. हाँ, क्या वो theorem है क्या? Statement बोलो जल्दी. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Is it so difficult to answer for you all? Yes, students. Very difficult question I'm asking to you all, right? No. So this is my dividend. This is my divisor.
This is my quotient. Quotient not given to us. That's why I've taken here Q plus remainder. All right. So ये तो हमको पता, तो हमने फटाफट इक्वेशन लिख लिया ना. हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What we have to find out? We have to find 4m को अगर 11 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है. दैट इज अ क्वेश्चन. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4. सो अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो. इक्वेशन 1 को 4 से 4m 4m mod 11 mod 44Q plus 11 into 4q प्लस, मैंने देखो 11 को टच नहीं किया है. ठीक है. 11 बिकॉज मेरा डिवाइजर है. हाँ, प्लस 24 हो जाएगा. ठीक है. मैंने 11 को टच नहीं किया था. मैंने 4 जो मल्टीप्लाई करे उसको 4q, बिकॉज 11 इज माय डिवाइजर. तो मुझे वो थोड़ा रिलेशन दिखाना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो डिवाइजर 11 ऐसे ही रखा, सो टच नहीं किया मैंने. ठीक है. तो 4m को मैंने 11 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट मिला 4q, रिमाइंडर मिला 24. क्या कोई नंबर को 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 24 मिल सकता है? नहीं मैम, रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमेशा? 0 से 3 के बीच में. हाँ हाँ, इधर अभी डिवाइजर क्या है मेरा? 0 to 3 क्या बोलता रहता है तुम लोग बार बार? 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में. 0 to 11 के बीच में, मतलब 0 से लेकर 10 तक. ये बीच में मत बोलो. बीच में मतलब कि यू आर नॉट इंक्लूडिंग 0 and 10, बट 10 कैन आल्सो बी द रिमाइंडर, राइट? यस. तो 0 से लेकर 10 तक हमारा क्या होता है? हो सकता है रिमाइंडर, बट इधर तो 24 है. अब मैं क्या करूं? उसको 11 से डिवाइड कर दो. 11 से क्यों डिवाइड करूं भाई? ठीक है, चल 11 से डिवाइड कर तो नहीं कर सकते, बट इसको स्प्लिट कर सकते हैं, सो दैट कि वो हमें डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो 24 आई कैन राइट 22 plus 2. करेक्ट है कि नहीं? Yes or no? 24 I can write 22 plus 2. Now what I'm going to take? I'm going to take 11 common from this first two terms. Okay, so 11 common लिया तो क्या बचेगा inside the bracket? 4q plus 4q plus 2 plus 2. now 4m 11 into ये जो है 4q plus 2, q1 ले लेती हूँ इसको, और ये 2 हो गया. q1 क्या है हमारा? 4q plus 2. क्या ये इंटीजर होगा क्या स्टूडेंट्स? 4 is integer, 2 is integer, q is also integer. तो sum and product of integers are integer. अब ये दिख रहा है क्या? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो क्या रिमाइंडर 2 हो सकता है अभी? तो हमने क्या किया? 4m को डिवाइड किया 11 से. 11 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या मिला? q1 एंड रिमाइंडर क्या मिला? 2. माय क्वेश्चन इज क्या रिमाइंडर 2 हो सकता है? यस, बिकॉज 11 से छोटा है ना 2. तो since remainder is 2 which is less than my divisor क्या था मेरा? 11. therefore 4m mod 11 is equals to 2. therefore 2 is the remainder. I hope everyone has understood this question. anyone wants to ask anything? because एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ जिसका आप रिमाइंडर निकालने वाले हो खुद से. कौन सा स्टेप आपको नहीं समझा? you all can ask me. is there anything which you have not understood? ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओगे. ठीक है. okay. Okay, question number 3. Suppose a is an integer if a mod 7 is equals to 4, then what is what is 5a mod 7? Can you all do it?
So I'm giving you all 2 minutes, उसके बाद हम discuss करेंगे. All right? हाँ, equation is like dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Yeah, okay. So did you find that? No, ma'am, I'm doing it. All right. Okay. Okay. Yes. I think someone has got the answer. Yes. Who has got the answer? Ma'am, I also got. Okay, Sairaj, bolo. How did you do it? What was given to I'm- you first of all? Tell me that. Ma'am, first of all, the A is an integer. Okay. So Okay. also it's given that A is a mod of 7 A equals mod to 4. 7 is So 4. Yes. yeah. So our 4 is an um, remainder. Okay. Yes. 4 is a remainder. Okay. 7 is our Then dividend. okay. 7 is the dividend. I know, divisor, I think. No, question. हाँ. When we divide A mod 7 मतलब क्या आप A को 7 से divide कर रहे हो? A Yeah, को yeah. 7 से divide कर रहे हो तो remainder 4 मिल रहा है. मतलब 7 is your divisor. Divisor, yeah. Okay. My bad. And dividend क्या हो गया? A. Dividend is A. Quotient हमें दिया हुआ है क्या? नहीं. No, ma'am. तो क्वेश्चन क्या ले लेंगे हम? Q. Q. ठीक है, and that is also an integer. ठीक है. So by quotient remainder theorem, what do we have? By quotient remainder theorem, Plus 4. A is equals to yes, A is equals to 7 Q. 7 into Q plus 4. 4. 4. बट हमें निकालना क्या है? 5A mod 7. Yes. 5A तो mod. हमें 5A को अगर 7 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. सो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? Ma'am, we'll multiply both the side whole term by 5. मल्टीप्लाई From one. इक्वेशन 1 बाय 5. बाय 5. 5. ठीक है. सो 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? 5A equals to 5A equals to 5 into 7 into 5 5 into क्यों लिखो चलेगा क्या? हाँ मैम. anything. हाँ, बिकॉज 7 इज अ डिवाइजर ना, तो उस डिवाइजर को मैं टच नहीं करूंगी, तो वो बाहर ही रखती हूँ. ठीक है. Plus प्लस 20. 4 into so 20 can be the remainder. The divisor is 7, so remainder should be From 0 to less. 7. हाँ, 0 to 7 नहीं, 0 to 6. 0 to 6. So 20 को आप कैसे स्प्लिट करोगे? So that 14 की plus रिमाइंडर हमारे क्या होना चाहिए? हाँ, 14 plus 6. yes. So 7 into 5 cube plus 20. I'm writing it as 14 plus 6. Next, what should I do? 7 कॉमन ले लेंगे मैम. Yes. So 5 cube plus 2 हो जाएगा. Plus 6. And then this 6. So क्या मिलेगा? 5A is equals to 7 into Q1 plus 6. Where Q1 is what? 5 cube plus 2. And is it an integer? So quotient first of all integer होना चाहिए. Yes, it is an integer because Q is integer, 5 is integer, 2 is integer. So sum and product of integers are integer. Yes. So हमें remainder क्या मिल गया? So here R is what? 6. Is it 6. less than divisor? Divisor क्या था हमारा? 7. 7. So yes, therefore R is equals to 6 is the remainder. All right. Yes ma'am. So okay, so therefore I got when I'm dividing 5A with 7, so I'm getting remainder as 6. So one last question I'm going to give on this topic. So quickly, I'll not try to know this much. आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं, and then I'll tell you whether it is right or not. Okay. Yes ma'am. So question number 4. Suppose B is an integer, or let B is an integer. Let B is an integer. So if B mod 12 is equals to 5, if B mod 12 is equals to 5, then what is 8B mod 12? Okay, do this question quickly and tell me किसका आंसर क्या है. ठीक है.
So I'm giving you all again 2 minutes. I hope everyone has understood this type of question. तो ये question जरूर आता है exams में. So please take care of it. Okay. So one last theorem we will do and then we'll stop. Okay. मैम अगर एग्जाम में बोलो। आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो हम Yes. लोग ऐसे रफली फट करके सिर्फ आंसर दे दिया तो हो जाएगा ना कि वो देखो आपको प्रॉपर 5 हो। मार्क्स के लिए आएगा तो थोड़ा अच्छे से लिखने का ना, लिखने का भी थोड़ा अच्छे से हैबिट डालो. हाँ हाँ ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. So we did too many questions on quotient remainder theorem. Now next, the okay it is ये result हम use करेंगे. ठीक है, this result I'm going to use in proving the next theorem which I'm going to give you all. Okay, show that any integer. मैम Yes, बोलो. एक लास्ट क्वेश्चन है. हाँ बोलो बोलो. रिमाइंडर अरे सब मतलब कम से कम छोटा रहेगा चलेगा ना? कम से कम छोटा रहेगा मतलब छोटा होना चाहिए ना? छोटा नहीं होना चाहिए. दैट आपका जो भी डिवाइजर रहेगा उस डिवाइजर से आपका रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता है. आइदर इट विल बी फ्रॉम 0 to d-1. तो पर जो रिमाइंडर रहेगा वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना. ठीक है, यस मैम. तो उसको छोटा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसे ही रखेंगे. हम जबरदस्ती थोड़ा छोटा बना रहे हैं. अभी 12 डिवाइजर है तो 40 रिमाइंडर थोड़ा ना हो सकता है, राइट? नो. ऑल राइट. So what is this result telling you all? That if we divide any number, so that any integer can be written in one of the 4 form. So आप कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर को आप या तो 4q के फॉर्म में लिख सकते हो या 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3. You can write any of the number in one of this form. So इसको prove कैसे करेंगे students? Has anyone understood कि what it is telling you all first of all before I explain you? No ma'am. Okay, nobody understood what it is telling you. So let n be any integer. Okay, so let n be any integer. So what it is telling you that any integer can be written in one of the 4 form. So मैं वो number जो है वो number को मैंने क्या ले लिया n. Let n be any integer. So what I have to show students? What I have to show that ये जो number होगा या तो ये form में रहेगा या तो ये form में रहेगा या तो ये form में रहेगा तो या तो 4q plus 3 के form में रहेगा. So let us do that. So हम divisor क्या ले लेंगे? Here divisor में ले लेती हूँ 4. Okay. So by quotient remainder theorem, QR लिखा है मतलब quotient remainder लिखा है मैंने. So by quotient remainder theorem, I know that it is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. हाँ अभी समझा. What happened? अभी क्वेश्चन समझ गया है. सो डिविडेंड क्या है मेरा? आई हैव टेकन एनी इंटीजर एंड डिवाइजर हो गया मेरा 4. क्वोशिएंट की जगह मैं ले लेती हूँ q और रिमाइंडर क्या ले लेती हूँ r. ना रिमाइंडर क्या क्या वैल्यू ले सकता है बच्चों? अभी डिवाइजर मेरा 4 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? कैन इट बी 0? इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 4 कैन इट बी 0? यस, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है. 4 हो सकता है क्या रिमाइंडर? नहीं. 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता. ठीक है, so I took any integer n because बोल रहा है कि any integer you can add any of the 4 form. So I took any integer n randomly I have taken, right? And divisor मेरा क्या ले लिया मैंने 4. So quotient remainder theorem अप्लाई किया तो ये हमें रिलेशन मिला है. एंड रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3. तो सपोज रिमाइंडर 0 है मेरा. So when r is 0 तो n क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? It is going to be 4q. Okay. When r is equals to 1 मतलब जब रिमाइंडर मेरा 1 होगा तो n कौन से फॉर्म में आ जाएगा? n is going to be of the form 4q plus 1. When r is equals to 2 मतलब मेरा रिमाइंडर 2 है तो n कौन से फॉर्म में हो जाएगा? n is going to be of the form 4q plus 2. And when remainder is 3 तो n कौन से फॉर्म में आ जाएगा? 4q plus 3 के फॉर्म में. So अब देख सकते हैं कि I had taken any number n. So I can write that number in any of the 4 form. 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3.
So you take any number, students, any number. You can write that number in one of the 4 form. I hope everyone has understood this. Okay. So बस ये इधर हम stop करते हैं. ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थ्योरम बिकॉज ये हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करने में यूज करेंगे. ठीक है. आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयरिंग.